Now direct speech और indirect speech में क्या है? Now suppose आपने मुझे कुछ बताया, right? You told me something, कुछ भी, and what you told me मैं किसी तीसरे आदमी को बता रहा हूँ, okay? Now there are two ways of transmitting this information. You gave me some information. Information देने के लिए you use words. So मैं अभी वो information किसी तीसरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ. अब उसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं. Which are those two methods? One is I can simply repeat your exact words. That is, जिसको मैं बता रहा हूँ उसको मैं I can tell him exact words which you used. So when to convey this information, I use the exact words used by you. उसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. डायरेक्ट स्पीच मतलब using the exact words of the original speaker. You are the original speaker, मैं तो original speaker नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ convey कर रहा हूँ information. So when I use exact words of the speaker to convey the message of the speaker, we say this is direct speech. But दूसरा तरीका ये है, I instead of using your exact words, तो whatever you said वो जो मेरी समझ में आया उसको मैंने अपने words में express किया. I'm not using exact words of the speaker. I'm using my words to transmit the message. So now I'm not using your words exactly. What I'm doing is I am indirectly passing your message using my words. This is called indirect form of narration or indirect speech, right? Direct speech मतलब जो मैसेज कन्वे कर रहा है, he or she is using exact words of the original speaker. Indirect मतलब original, direct words of the original speaker are not being used. They have been translated by the transmitter using his or own words. So now इसको पढ़िए, now read this. Many times we have to report that we have heard from someone else. For this, we can either quote actual words of the speaker or report in our own words. When we use the actual words of the speaker, we are using direct form of narration. First, father says a man is known by the company he keeps. Second, the boy said we want to pay after this period. Third, Kalki said, I want the kingdom of Ayodhya for Bharat. Fourth, wait here till I return, said the guide of to the tourist. Right. So a man is known by the company he keeps are the exact words of the father. So when I'm conveying this information to some third person, I'm using these exact words. Second, the boy is said, we want to now इसमें थोड़ा typing mistake है. It should not be pay, it should be play. The boys said we want to play after this period. So we want to play after this period are exact words of the boys. So we are using exact words. I want the kingdom of Ayodhya for Bharat are exact words of Kakai. And then wait here till I return are exact words of the guide. So when we are using exact words of the original speaker, we say this is direct form of narration or this is direct speech. Now read. The actual word of the speaker are given inside the inverted commas and are called reported speech.
In above sentences, reported speech is a man is known by the company he keeps. We want to play after this period. Wait here till I return. Now the rule to write direct speech is first speaker, whosoever is speaker. Speaker in this case, original speaker is, let's say, father. Then Father is yes. says, can be said, can be, will say, whatever. In this case, it is say. Second case, it is said. Third case, it is said. Fourth case, it is said. So, and then after this, we put a comma. Then inverted commas start, and exact words of the speaker are put within the inverted commas. So a man is known by the company he keeps are the exact words of the speaker. They are put in the inverted commas. Now, and after inverted comma, we can put a full stop if it is a statement, or we can put a question mark if it is a question. So direct form of narration, direct speech का rule बड़ा simple है. It is the speaker plus says or said or will say or whatever, comma, then exact words within the inverted comma, full stop or question mark. This is the rule. So in the first case, the exact words are man is known by the company he keeps. It's in full. It is in inverted commas. Now ये जो inverted commas में लिखा होता है, इसको बोला जाता है reported speech because it is these words which will report to somebody else. This is called reported speech. And जो अंदर वाला verb होता है, that is called reported verb. So we want to play after this period. Play verb है. We want to play after this period. ये पूरा statement है reported speech. Then we want to play. Play verb है. Play is a reported verb. And जो बाहर है, the boy said, ये reporting speech है and इसका verb है reporting verb, that is said. Now for the boys said. Now इसके आगे कुछ और भी आ सकता है. The boys said to, किसको बोला उन्होंने? We can write that also. The boys said to the principal. We want to play after this period. Father says to me, right? Now ये हो भी सकता है, that is object, subject, verb, object. ये जो ये चार जो sentences हैं, इनमें कहीं भी subject का object नहीं है, sorry, verb का object नहीं है. Subject तो है father, subject तो है the boys, subject तो है कई, subject तो है. फोर्थ में ऑब्जेक्ट है वर्ब का. गाइड सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, एंड टूरिस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है. सो जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला है उसमें सब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब तो होगा ही, सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ओके, सो दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच. देन नेक्स्ट इसको पढ़िए. Above sentences can also be reported in the indirect form of narration, as under father says that a man is known by company he keeps. The boy said that they wanted to play after that period. हाँ. Kalki said that she wanted kingdom of Ayodhya for Bharat. The guide asked the tourist to wait till he returns. Right. So one method is to use exact words of the speaker, original speaker. Second is to translate these words. So these words are then translated by whosoever is the intermediary, whosoever is giving this message to somebody else. Translate तो कर दिया जाता है, but meaning should not change. Then ये translate करने के कुछ rules हैं. What we'll see is which are those rules when the translation is done. So, for instance, जैसे translate होके first case बन गया, father says that a man is known by the company he keeps.
Second case में, now see, in second case actually it was we want to play after this period, and ये बदल के लिख दिया गया है they wanted to play after that period. So ये changes क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, इसके rules हैं. This is what we'll see. Okay. Then आगे. Note the following points. If the reporting verb has an object, said is usually changed to told. In affirmative sentences, use that before the changed to version of the reported speech and do away with the inverted commas. Change the pronouns and tenses used in the reported speech accordingly. Okay, now so we come back to the original sentences. First sentence, verb is say. इसका subject है father, but there is no object. Second sentence, verb is said. इसका subject है boys, but object नहीं है. Third sentence, verb is said. कई सब्जेक्ट, बट अगेन कोई वर्ब नहीं है इसका, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. बट द फोर्थ सेंटेंस सब्जेक्ट है गाइड, एंड देन वर्ब है सेड, सब्जेक्ट है गाइड, एंड देन देयर इज ऑब्जेक्ट आल्सो, एंड दैट इज टूरिस्ट. नाउ व्हाट इज रिटन इज, अगर आपके वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, देन ये सेड जो है इसको चेंज कर दिया जाता है, एंड टोल्ड या टेल या विल टेल लिख दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब. बट इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, देन सेज और सेड इज यूज्ड एज इट इज. सो फादर सेज का फादर सेज ही रहेगा, द बॉयज सेड का बॉयज सेड ही रहेगा, कई सेड का कई सेड ही रहेगा. लेकिन the guide said to tourist बदल जाएगा, it will be the guide told the tourists. दूसरा इंडायरेक्ट बनाने का दूसरा रूल ये जो डायरेक्ट में जो कॉमा आता है रिपोर्टिंग स्पीच के बाद में, कॉमा हटा दिया जाता है, इन्वर्टेड कॉमास भी हटा दिए जाते हैं, एंड जो अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज हो जाता है. वो कैसे चेंज होता है, दिस इज व्हाट विल सी. सो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो से या सेड का टेल या टोल्ड हो जाता है, अदरवाइज से या सेड ऐसे कैसे रहता है. तो ये लिखा हुआ है. नाउ नॉट ओनली एफर्मेटिव, इन एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज आती है, बदल जाता है. वो क्या बदलता है आगे जाके देखेंगे. सो एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में होना चाहिए, use that before change version of the reported speech. Yeah. So inverted comma को हटा के that लिखा जाता है, inverted commas हटा दिए जाते हैं, and then वो जो inverted commas के अंदर था reported speech वो change हो जाती है. Change the pronouns and tenses used in the reported speech accordingly. Now एक चीज और है, दो सेंटेंसेस हैं इन सब के अंदर. एक इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद फादर सेज, द बॉय सेड, कई सेड, सेड द गाइड टू द टूरिस्ट. ये वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, और ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. दूसरा कंप्लीट सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है. A man is known by the company eats. We want to play after this period. I want the kingdom of Ayodhya for Bharat. Wait here till I return. जो भी चेंज होती है वो सिर्फ इन्वर्टेड स्पीच की ही होती है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच की होती है. रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होती, एक्सेप्ट दैट इन सम केसेस वी चेंज से टू टेल. दूसरा, दो सेंटेंसेस है, एक रिपोर्टिंग स्पीच एक रिपोर्टेड स्पीच. तो अगर दो सेंटेंसेस हैं तो दोनों के टेंस भी हैं, टेंस तीन तरह के हैं. सो
We can have present tense, past tense and future tense outside. We can have present tense, past tense and future tense inside. ये पॉसिबल है बाहर लिखा हो प्रेजेंट, अंदर लिखा हो पास्ट. ये भी पॉसिबल है अंदर लिखा है पास्ट और बाहर लिखा है पास्ट और अंदर लिखा है प्रेजेंट. सो ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर. एंड दूसरी चीज, we have three persons, first person, second person, third person. The subject can be first person, object can be first person, and ये अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है. So सीखना क्या है, टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, और ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको बोला जाता है पर्सनल प्रोनाउन. ये पर्सनल प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं और वर्ब कैसे चेंज होते हैं, ये समझना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी विल सी हाउ पर्सनल प्रोनाउंस आर चेंज्ड. ओके, पढ़िए. Change of pronouns. The first person pronouns I, we, me, my, us, are used in reported speech are changed according to the subject of reporting verb. Examples: she says I am happy. Direct speech. She says that she is happy. Indirect speech. He says I am a good boy. Direct speech. He says that he is a good boy. Indirect speech. They say we love our country. Direct speech. They say that they love their country. Indirect speech. ओके, नाउ अगेन जो भी चेंज है वो अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें होगी, बाहर कोई चेंज नहीं होगी. एक्सेप्ट दैट समटाइम वो जो से है वी चेंज दैट टू टेल. इसके अलावा कोई चेंज नहीं होती. टेंस नहीं बदलेगा, प्रोनाउंस नहीं बदलेंगे, नाउन नहीं बदलेंगे, नथिंग विल चेंज एक्सेप्ट समटाइम वी सिंपली चेंज से टू टेल. जो भी चेंज होनी है वो सिर्फ अंदर होगी. अंदर कैसी चेंज होती है, नाउ वी हैव यू नो सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट Yes, sir. वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट. एनी जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है. दिस आल्सो यू नो इट्स आइदर नाउन और प्रोनाउन. प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है. नाउन तो नाम ही होते हैं, बट प्रोनाउंस आर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर आई, वी, मी, माई, अस, आवर. हालांकि माई एंड आवर प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव्स हैं. नाउ रूल बोलता है देन ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी फर्स्ट पर्सन वाले वर्ड हैं, फर्स्ट पर्सन वाले वर्ड, फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा. क्लियर, अगेन रिपीट करता हूँ. रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन वाला सब्जेक्ट, दैट इज अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई, वी, मी, माई, अस, आवर एक्सेट्रा है, तो वो वर्ड रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे. चेंज कैसे हुए, ना आप देख लो. जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका सब्जेक्ट है शी, दैट इज थर्ड पर्सन. ओके, सब्जेक्ट है. एंड जो रिपोर्टेड स्पीच है दैट इज आई एम हैप्पी, इसका सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन. प्रोनाउन है शी इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. रूल बोलता है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का है
इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना है। एंड रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, कि आई भी थर्ड पर्सन में बदल जाएगा। एंड क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही हम यूज कर सकते हैं। एंड अभी आई थिंक 2 बजे हमने देखा था सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। So she says that I has to be changed to third person. Third person subjective pronoun है she. So she says that she is happy. अभी हम सिर्फ pronouns की बात कर रहे हैं, tenses की बात नहीं कर रहे हैं। He says I'm a good boy. I first person है, reported speech का, इसको reporting speech के subject के हिसाब से change होना है। So आई बन जाएगा ही। ना सपोज इसमें अगर ही के बदले आई लिखा होता, आई से आई एम अ गुड बॉय। नाउ आई हैज टू चेंज एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, दैट इज फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन ही रह जाता, आई से दैट आई एम अ गुड बॉय। बट सपोज ही के बदले यू होता, यू से आई एम अ गुड बॉय। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना है। तो अभी ही से में सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, सो आई बन जाएगा सेकंड पर्सन। ही यू से दैट यू आर अ गुड बॉय। सो रूल कहता है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन वाला जो वर्ड है सब्जेक्ट है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। पहला रूल। दूसरा रूल 9 पढ़ी। Change of pronouns. The second person pronouns you, yours, your used in the reported speech are changed according to the object of the reporting verb. Supply your own object if it is not there in the sentences. Examples. She says to me, "You are my best friend." Direct speech. She tells me that I am her best friend. Indirect speech. The teacher said, "You are late again." Direct speech. The teacher told me that I was late again. Indirect speech. He said to them, you have come at wrong time." Direct speech. He told them that they had come at wrong time. Indirect speech. Now, पहली चीज, when we speak this direct speech वाले sentences, we shall have to actually speak mark of punctuation also. So she says to me, comma, inverted comma, start. You are my best friend. Inverted comma, full stop and inverted comma close. ये पूरा बोलना पड़ेगा, अदरवाइज जो लिसनर है उसको मालूम नहीं होता आप डायरेक्ट स्पीच की यूज कर रहे हो कि इनडायरेक्ट स्पीच यूज कर रहे हो, राइट? नाउ दूसरी चीज, क्योंकि सारा बोलना पड़ेगा। द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू आर लेट अगेन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो डायरेक्ट स्पीच वाला ऐसा पूरा बोलना पड़ेगा, अदरवाइज लिसनर इज कंफ्यूज्ड वेदर यू आर स्पीकिंग इन डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसके लिए हम कभी भी डायरेक्ट स्पीच में बात नहीं करते। When we are speaking, we always speak in the indirect voice. Why? Because you never hear anybody talking like this. She says to me, comma, inverted comma, start. You are my best friend, full stop, inverted comma, close. Nobody can talk like this. So direct speech हम सिर्फ writing में use कर सकते हैं, बोलते टाइम use नहीं कर सकते। बहुत confusion create हो जाता है। Okay, then. So बाहर वाले सेंटेंस, she says to me, she now, अभी जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका वर्ब है से, सब्जेक्ट है she एंड ऑब्जेक्ट है me। सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन एंड ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन। अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो स्टार्ट हुआ है यू से। यू इज सेकंड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन।
रूल बोलता है अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करिए, बाहर वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। बट अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो ये सेकंड पर्सन वाला जो प्रोनाउन है वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सो सेंटेंस इज शी सेज टू मी, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी, ऑब्जेक्ट है मी, एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। नाउ यू सेकंड पर्सन है and the rule says the second person has to change as per object of the reporting speech। तो reporting speech का जो object है वो है me, she says to me, which means the second person वाला subject है reported speech का वो change होके first person बनेगा। and again remember change हमेशा reported speech में होती है, reporting speech कभी change नहीं होती, except that sometimes we change say to tell। So she says to me, you are my best friend। She tells me that now you has to be converted to first person, and you का you subjective pronoun है तो equivalent subjective pronoun है I। you के साथ यूज होता है are और I के साथ यूज होता है am। So she tells me that I am her best friend। The teacher said, comma, inverted comma, start, you are late again, full stop, inverted comma, close। Now, ये वाले सेंटेंस में the teacher said ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई कह रहा है तो किसी को तो कहा ही होगा ना। In cases where there is no object written and I have to change subject of the reported speech, then I can supply, I can write the object of the reporting speech on my own। मुझे जो समझ में आए मैं लिख सकता हूँ। For instance यहाँ लिखा गया the teacher said to me, किससे बोला? मुझसे बोला। Teacher said to me, you are late again। Now you second person है, so it has to change as per object of the reporting speech। ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का मी, तो यू का बन जाएगा आई। अब यू सेकंड पर्सन से बदल के फर्स्ट पर्सन में लिखना है। बट अगर कोई ये भी बोल सकता है टीचर सेड टू हिम, मी के बदले टू हिम। हिम थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, बाहर का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जो बाहर का ऑब्जेक्ट है थर्ड पर्सन उसके हिसाब से बदल जाएगा। सो टीचर टोल्ड हिम दैट ही वाज लेट। सो ये रूल है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से, सॉरी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। Second person subject of reported speech is changed as per object of the reporting speech। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। So आगे चलिए। Change of pronouns. The third person pronoun he, she, they, his, him, her, them used in the reported speech are not changed. Example, Raj says she is a good singer, direct speech. Raj tells that she is a good singer, indirect speech. He said to me, they are my students, direct speech. He told me that they were his students, indirect speech. Ram says he is a sincere worker, direct speech. Ram tells that he is a sincere student, indirect speech. Now इसमें भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आया हुआ है। He said to me they are my students,
नाउ थर्ड सेंटेंस में ही इज ए सिंसियर वर्कर के बदले स्टूडेंट होना चाहिए. ओके. नाउ ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है और थर्ड पर्सन भी हो सकता है. तो अगर फर्स्ट पर्सन है देन इट इज चेंज्ड एज पर सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. Second person है then that gets changed as per object of the reporting speech. But अगर third person है then third person में कोई change नहीं आती है. So Raj says she is a good singer. She third person है तो ये नहीं बदला जाएगा. और tenses बदलेंगे. Tense कैसे बदलते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. So Raj says she is a good singer. She stays as it is because she is third person. He said to me, they are my students. They third person है, ये नहीं बदलेगा. It will be written as it is. He told me that they were his students. Ram says he is a sincere student. So he third person है, subject है reported speech का, but क्योंकि third person है इसलिए नहीं बदलेगा. So इसी जो changed sentences हैं, इनमें भी Raj says comma inverted comma start, she is a good singer, full stop inverted comma close. So इसका जो indirect speech बना उसमें भी she ऐसे ही लिखा हुआ है. Now these can be names also. तो नाम तो third person ही होती है हमेशा. Raj says Rita is a good singer, so Raj tells that Rita is a good singer. So change of pronoun. So ये थे pronoun कैसे change होते हैं. नाउन चेंज नहीं होते हैं, प्रोनाउन ही चेंज होंगे. नाउन होता है नेम्स, नेम्स ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. दैट डज नॉट चेंज. व्हाट चेंजेस इज ओनली रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सनल प्रोनाउन है वो चेंज होते हैं. नाउ लेट अस सी नाउन. ये तो थे प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस वर्ब कैसे चेंज होते हैं. नाउ वी हैव थ्री टाइप ऑफ वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अभी बाहर वाला टेंस प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है. राज सेज प्रेजेंट टेंस है, राज सेड पास्ट टेंस है, राज विल से फ्यूचर टेंस है. सो बाहर वी कैन हैव प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. अंदर भी यही पॉसिबिलिटी है. शी इज अ गुड सिंगर, ये प्रेजेंट टेंस का है. शी वाज अ गुड सिंगर, पास्ट टेंस का है. शी विल बी अ गुड सिंगर, फ्यूचर टेंस का है. तो अगर बाहर के टेंसेस को देख के अंदर के टेंस कैसे चेंज होते हैं, दिस इज व्हाट वी विल सी नाउ. एंड चेंज हमेशा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें ही होती है. रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं की जा सकती, बारिंग मेनी टाइम्स वी हैव टू चेंज से टू टेल. पढ़िए. Change of tenses. In case the reporting verb is in the present or future tense, the tense in the reported speech is not changed. Example, he says his father is a very kind, direct speech. He says that his father is very kind, indirect speech. Reshma will say you cheated her, direct speech. Reshma will say that you cheated her, indirect speech. नाउ ये जो रिपोर्टिंग स्पीचेस हैं दोनों सेंटेंसेस की, इसमें एक प्रेजेंट टेंस है ही सेज, एक फ्यूचर टेंस है रेशमा विल से. नाउ अंदर वाला टेंस के साथ क्या किया जाएगा ये डिसाइड करता है बाहर वाला टेंस कैसे है. एंड द रूल सेज कि अगर बाहर वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच वाला वर्ब है, टेंस है, वो चेंज नहीं किया जाएगा. सो ही सेज प्रेजेंट टेंस का है. हिज फादर इज वेरी काइंड, ये भी प्रेजेंट टेंस का है. बट क्योंकि बाहर वाला टेंस रिपोर्टिंग स्पीच वाला टेंस प्रेजेंट टेंस का है, इसके लिए अंदर वाला टेंस भी प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. ही सेज दैट his father is very kind. Now अगर अंदर होता his father was very kind तो ऐसे लिखा जाता. He says
his father was very kind. फ्यूचर होता his father will be very kind, तो ऐसे कैसे लिखा जाता फ्यूचर? He says that his father will be very kind. So, and then see second sentence में रेशमा will say, ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो टेंस है, वो फ्यूचर टेंस है, और अंदर वाला पास्ट टेंस है, पर क्योंकि बाहर फ्यूचर टेंस है इसके लिए अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होगा. रेशमा विल से यू चीटेड हर. रेशमा विल से दैट यू चीटेड हर. ये है. तो अगर बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस बदलेगा नहीं, जो है ऐसे कैसे लिखा जाएगा. प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर. यहाँ मिस्टेक होती है, कई बार लोग बाहर वाला टेंस तो प्रेजेंट या फ्यूचर है, लेकिन अंदर वाला भी प्रेजेंट लिखा हो उसका पास्ट बना देंगे, ये मिस्टेक है. Then Change of tenses. In case the reporting verb is in past tense, the reported verb is changed into past tense. Example, he said my father is a very kind. Direct speech. He said that his father was very kind. Indirect speech. She said they were playing outside. Direct speech. She said that they were playing outside. Indirect speech. now ये जो रिपोर्टिंग अब तक ये जो हमने सेंटेंस देखे, इसमें ये जो रिपोर्टिंग दिस थिंग स्टेटमेंट है, राज सेज प्रेजेंट, ये टेंस की बात कर रहे हैं. सो जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका टेंस है प्रेजेंट और फ्यूचर. तो अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का, तो अंदर का टेंस जैसा है वैसे का वैसे रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी. ना अदर पॉसिबिलिटीज, जो बाहर का टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है. सॉरी, बाहर का टेंस पास्ट टेंस है, अंदर का टेंस प्रेजेंट टेंस है. वेरी क्लियर, बाहर का टेंस पास्ट टेंस है एंड अंदर का टेंस भी पास्ट टेंस है. सॉरी, अंदर का टेंस फ्यूचर टेंस है, बाहर का टेंस पास्ट टेंस है, अंदर का टेंस प्रेजेंट टेंस है. तो जब इनडायरेक्ट स्पीच लिखा जाएगा तो जो अंदर का प्रेजेंट टेंस है उसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. ये है फर्स्ट दिस थिंग, ही सेड माय फादर इज वेरी काइंड. ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है. She said that they are playing outside. ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है. तो इसमें क्या चेंज होता है ये पढ़िए. नाउ ऑफ कोर्स यू आर रेडी. तो इसमें क्या होता है, ये जो अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच है उसका प्रेजेंट टेंस बदल के पास्ट लिख दिया जाता है. He said my father is very kind. Now he said तो आएगा ही, my बदल जाएगा to his father. Now is का जो past है वो है was. So he said that his father was very kind. She said they are playing outside. Now अंदर का टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, बाहर का टेंस पास्ट टेंस है, तो अंदर का टेंस बदल जाएगा टू पास्ट कॉन्टिन्यूस. सो शी सेड दे आर प्लेइंग आउटसाइड, नाउ बदल जाएगा, शी सेड दैट दे वर प्लेइंग आउटसाइड. सो अगर बाहर का टेंस रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो अंदर के टेंस में जो है कोई चेंज नहीं होती. लेकिन अगर बाहर का टेंस पास्ट टेंस है और अंदर का टेंस प्रेजेंट टेंस है तो अंदर का टेंस भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है.
ना तो कंफ्यूजन स्टार्ट्स जब अंदर बाहर भी पास्ट टेंस है और अंदर भी पास्ट टेंस है, तो क्या किया जाए? टेंसेस के चार स्ट्रक्चर हैं: सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कोई भी हो सकता है चारों में से। सो अगर बाहर भी पास्ट अंदर भी पास्ट, तो फिर चेंज कैसे होता है? स्लाइड दिखाने से पहले मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। दैट रूल ऑफ थंब इज, अंदर वाला टेंस एक टेंस पीछे चला जाता है। कैसे? अगर अंदर वाला टेंस पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, द पास्ट सिंपल टेंस के पीछे पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो अगर अंदर वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल है और बाहर का भी पास्ट सिंपल है, बाहर का तो पास्ट सिंपल हो गई, तो जो अंदर वाला टेंस है पास्ट सिंपल वाला, वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक टेंस पीछे चला जाता है, पास्ट सिंपल के पीछे पास्ट परफेक्ट है, लेकिन पास्ट परफेक्ट के पीछे कोई दूसरा टेंस नहीं है पास्ट टेंस में। तो अगर मेरा बाहर वाला सेंटेंस पास्ट है और अंदर वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है, तो ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट सिंपल के पीछे तो पास्ट परफेक्ट है, लेकिन पास्ट परफेक्ट के पीछे कोई दूसरा टेंस नहीं है। देन वी कैन आल्सो हैव कंटीन्यूअस टेंस। बाहर का टेंस तो है पास्ट सिंपल और अंदर का टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस। ही सेड इट वाज रेनिंग वेरी हेवीली। अगर अंदर का टेंस, तो आई सेड अगर अंदर का टेंस पास्ट टेंस है, तो वो एक टेंस पीछे चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस के पीछे भी है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो अगर अंदर का टेंस पास्ट कंटीन्यूअस है और बाहर का टेंस भी पास्ट ही है, तो अंदर का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और वी हैव पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आल्सो। तो अगर अंदर का जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा है, तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के पीछे कोई दूसरा टेंस नहीं है। पास्ट सिंपल के बदले के पीछे पास्ट परफेक्ट है, लेकिन पास्ट परफेक्ट के पीछे कोई टेंस नहीं है। पास्ट कंटीन्यूअस के पीछे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, बट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के पीछे कोई और टेंस नहीं है। रीड इट। Change of tenses. In case the reporting verb is in past tense, the past tense in the reported verb is says changed as in the tense past simple and perfect, past continuous and perfect continuous, change to past perfect continuous. Example: direct speech. A. She said I went there. Indirect speech. She said that she had gone there. B. She said I had gone there. Indirect speech. She said that she had gone there. Direct speech. I said it was raining outside. Indirect speech. I said that it had been raining outside. Direct speech. I said it had been raining outside since morning. Indirect speech. I said that it had been raining outside since morning. तो बाहर का टेंस तो पास्ट टेंस है, दैट वी से ही सेड, शी सेड, दे सेड, वी सेड, जो भी है। अंदर का जो रिपोर्टेड वर्ब है, टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, इट कैन बी पास्ट सिंपल, इट कैन बी पास्ट कंटीन्यूअस आल्सो। बाहर का तो पास्ट है ही, पास्ट सिंपल वो तो है ही, दैट वी नो। तो अगर बाहर वाला टेंस पास्ट सिंपल है और अंदर वाला टेंस पास्ट भी पास्ट सिंपल है, दैट इज आई वेंट देयर, तो जो अंदर वाला टेंस है, अंदर वाले सेंटेंस का टेंस वो बदल जाएगा, एंड नाउ इट विल बी रिटन इन
शेप ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर अंदर का टेंस ही पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट के पीछे कोई दूसरा टेंस नहीं है, तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। सो शी सेड आई वेंट देयर। बाहर का टेंस पास्ट टेंस, अंदर का टेंस पास्ट टेंस, बट अंदर का टेंस पास्ट सिंपल है, तो ये पास्ट सिंपल बदल जाएगा टू पास्ट परफेक्ट। एंड पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। सो शी सेड दैट शी हैड गॉन देयर। आई बदल गया है एज पर सब्जेक्ट दैट वी आर सीइंग, लेकिन ये जो पास्ट सिंपल है अंदर वाला सेंटेंस ये पास्ट परफेक्ट बन गया। और अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट के पीछे तो भी है ही नहीं, हो तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा। सो इसके लिए जो बी वाला सैंपल है, शी सेड आई हैड गॉन देयर, ये आई हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, तो ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा। ओके, आगे पढ़िए। राइट, सो देन वी कैन हैव, बाहर का तो पास्ट सिंपल है ही, अंदर का जो टेंस है वो हो सकता है पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर अंदर वाला टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो चेंज हो जाएगा टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन अगर अंदर वाला सेंटेंस ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो वो चेंज नहीं होगा। I said it was raining outside. It was raining outside प्री पास्ट continuous tense का sentence है। This gets changed to past perfect tense sentence. She said that she said that it had been raining outside. And अंदर वाला tense खुद ही past perfect continuous हो सकता है। अगर अंदर वाला टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे कोई दूसरा टेंस नहीं है। सो प्रेजेंट सिंपल इज चेंज टू पास्ट परफेक्ट एंड आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डजंट चेंज, इट स्टेज एज इट इज। ओके, इसको पढ़िए। However, if the reported speech expresses a universal truth, a habitual fact, a scientific fact, or a mathematical outcome, its tense remains unchanged. Even if the reporting verb is in past tense. Examples: the teacher said the earth is round, direct speech. The teacher said that the earth is round, indirect speech. Mother said 2 and 3 are 5, direct speech. Mother said that 2 and 3 are 5, indirect speech. Now the rule says that if outside is past tense, then inside का tense change करना पड़ेगा। But we have what are called universal truth, habitual fact. Habitual fact मतलब मेरी आदतें, साइंटिफिक फैक्ट और अ मैथमेटिकल आउटकम। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इनमें से कोई भी एक है, इज इट अ यूनिवर्सल ट्रूथ और अ हैबिट और अ साइंटिफिक फैक्ट और अ मैथमेटिकल इक्वेशन, देन उसका टेंस नहीं बदला जाता। एंड नॉर्मली ऑल दीज थिंग्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, mathematical outcome, etc., they are all written in present simple tense. But अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है, कोई हैबिचुअल फैक्ट लिखा है, आदत, कोई साइंटिफिक फैक्ट लिखा है या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है, तो वो चेंज नहीं होगी, वो ऐसे कैसी रहेगी। जैसे या एग्जाम्पल नीचे दिए हुए, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। टीचर ने कहा सो बिकॉज
अर्थ इज राउंड एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके लिए ये ऐसे कैसे रहेगा? वी कैन नॉट से द अर्थ वाज राउंड. इफ आई से अर्थ वाज राउंड मतलब आज राउंड नहीं है क्या? सिंस दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ इट हैज टू बी रिटन इन आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस ओनली. इसका टेंस नहीं बदल सकता. Mother said 2 and 3 are 5. This is a mathematical equation, mathematical formula. This is always true. So इसका जो टेंस है वो नहीं बदलेगा, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा. ये एक्सेप्शन है. And I think there is some more changes. हाँ जी पढ़िए. In case the reporting verb is in past tense, the words showing nearness in the reported speech are changed as word is changed to that, word here changed to there, word now changed to then, word tomorrow changed to next day, word yesterday changed to previous day, word last night changed to previous night, word this changed to those, word ago changed to before, word today changed to that day. ओके ये जो आपके वर्ड्स हैं जो नियरनेस दिखाते हैं, नियरनेस सेंटेंस में लिखा है दिस क्या बता रहा है? नियरनेस. हियर क्या बता रहा है? टाइम, अभी का. एंड ही सेज अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब बाहर वाला टेंस पास्ट टेंस में है, तो ये जो वर्ड्स नियरनेस दिखाते हैं दिस, हियर, नाउ, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट एक्सेट्रा, इनको बदल दिया जाता है. एंड बदल के ये अभी थोड़ा एक्चुअली दूर हो जाते हैं. नाउ डिस्टेंस कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल ऑल्सो, किसी भी तरह का हो सकता है. बट अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब दैट इज बाहर वाला वर्ब पास्ट टेंस में है, तो अंदर वाले जो वर्ड्स हैं उनमें चेंजेस आएंगी. एक होता है वर्ड्स डिनोटिंग लोकेशन, नियरनेस या डिस्टेंस, वो बदल जाते हैं. कैसे बदल जाते हैं वो दिया हुआ है. अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में दिस लिखा है तो जब आप उसको करोगे ट्रांसलेट तो वो दैट बन जाएगा, देयर का देयर बन जाएगा, नाउ विल बी चेंज टू देन, टुमारो विल बी चेंज टू नेक्स्ट डे. तो ये चेंजेस आएंगी. लास्ट नाइट विल बी चेंज टू प्रीवियस नाइट, दीज विल बी चेंज टू दोज, अगो चेंज टू बिफोर, टुडे चेंज टू दैट डे. तो ये वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस है. जो नियरनेस दिखाने वाले वर्ड हैं जब वो रिपोर्टेड स्पीच में ट्रांसलेट होंगे तो वो डिस्टेंस दिखाना चालू कर देंगे. Example, she said, you may sit here, direct speech. She said that I might sit here, indirect speech. Lalita said, I am not free now, direct speech. Lalita said that she was not free that day, indirect speech. They said, we want to start working from today, direct speech. They said that they wanted to start working from that day, indirect speech. Okay. So ये वर्ड्स जो नियरनेस बताते हैं ये बदल जाते हैं टू वर्ड्स जो डिस्टेंस बताते हैं. सो यू मे सिट हेयर, शी सेड यू मे सिट हेयर, ये हेयर बता रहा है नियरनेस. जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा तो ये बदल जाएगा, हेयर का बन जाएगा देयर. सेकंड सेंटेंस नाउ का बन जाएगा दैट डे. टुडे थर्ड सेंटेंस टुडे का बन जाएगा दैट डे. सो यू, शी सेड यू मे सिट हेयर, शी सेड दैट आई माइट सिट देयर. Lalita said, now, Lalita said, I am not free now. Lalita said that she was not free that day. So, now बदल जाएगा that day में, today बदल जाएगा
दैट डे। सो ये जो आपके वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस है, मेंटल या फिजिकल, ये बदल जाते हैं। एंड दिस नाउ दे स्टार्ट शोइंग डिस्टेंस। Distance can be physical, distance can be mental also. एक ये बदलते हैं। Verbs to be are changed as under. Word is changed to was. Word are changed to were. Word can change to could. Word shall change to should. Word will change to would. Word may change to might. Word do change to did. राइट, सो बेसिकली अगर बाहर का टेंस पास्ट टेंस है, तो ये जो वर्ड है इज, आर, कैन, शेल, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब ये बदल जाएंगे। इज बन जाएगा वॉज, आर बन जाएगा वर, कैन बन जाएगा कुड। हालांकि कैन फ्यूचर का है, बट फ्यूचर का भी पास्ट होता है। डोंट कंफ्यूज पास्ट और प्रेजेंट का होता है, फ्यूचर का भी होता है। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स से 2 PM टुमारो। आज 2 PM टुमारो, मैं टुमारो 2 PM का जो गिनती है वो अब से चालू कर रहा हूँ। सो दैट इज फ्यूचर टेंस। बट ऐसे भी हो सकता है कि किसी ने टू बी सीन, सो इज बदल जाएगा वॉज में, आर बदल जाएगा वर्ब में, कैन बदल जाएगा कुड में, शैल बदल जाएगा शुड में। नाउ ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट टेंस वाले, ये पास्ट टेंस में लिख दिए जाएंगे। इसका पास्ट है वॉज, आर का पास्ट है वर, कैन का पास्ट है कुड। सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज, डोंट थिंक कि फ्यूचर का पास्ट नहीं होता, फ्यूचर का भी पास्ट होता है। कैसे? सपोज मैं बात कर रहा हूँ ऑफ सम एक्टिविटी, एंड वो इस एक्टिविटी का टाइम है 2 PM टुमारो। 2 PM tomorrow. Well, now let us say, if I say I'll be traveling to Surat at 2 PM tomorrow. 2 PM tomorrow फ्यूचर है, बट ये 2 PM tomorrow से पहले वाला टाइम, ये 2 PM tomorrow का पास्ट है। So what 1 PM tomorrow is past of 2 PM tomorrow. So फ्यूचर का भी पास्ट टेंस होता है। So will का पास्ट है वुड, मे का पास्ट है माइट, डू का पास्ट है डिड, शेल का पास्ट है शुड, कैन का पास्ट है कुड, इज का वॉज, आर का वर, एम का भी इज और एम ये दोनों का वॉज ही है, एंड आर का है वर। देन ये थे सेंटेंसेस नेगेटिव या एफर्मेटिव। नेगेटिव और सेंटेंस या एफर्मेटिव हो, ये जो रूल हमने अब तक देखे हैं ये नहीं बदलते, ऐसे कैसे रहते हैं। बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सेंटेंस विच इज इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वाला है। नाउ व्हेन यू हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस तो थोड़ा सा रूल बदल जाते हैं। क्या बदलते हैं रूल, ये देखते हैं, पढ़िए। Changing the interrogative sentences. If the question requires a full answer and begins with WH question, change the reporting verb into ask or inquired. She said to me, "Why are you late?" Direct speech. She asked me why I was late. Indirect speech. The doctor said, "How is the patient?" Direct speech. The doctor asked how the patient was. Indirect speech. नाउ क्वेश्चंस दो तरह के हैं। वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनका आंसर सिर्फ यस या नो ही होता है। एंड देन वी हैव क्वेश्चन स्टार्टिंग विद WH वर्ब। WH वाले क्वेश्चंस का आंसर यस नो नहीं होता है, वी हैव टू गिव कंप्लीट आंसर। तो नाउ दिस वाला सेज, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या करो, सबसे पहले सेट को चेंज कर दो एंड इसको लगा दो आस्क्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड।
दूसरा, डायरेक्ट स्पीच में वाई आर यू लेट के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, सो ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, बट रिमेंबर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये हम सिर्फ डायरेक्ट वॉइस में ही लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट वॉइस में क्वेश्चन नहीं लिखा जा सकता, वी कैन ओनली राइट अ स्टेटमेंट। वाई आर यू लेट, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बट दूसरा सेंटेंस देखिए नीचे वाला, शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट, यहाँ जो वाज है वाला सेंटेंस, वर्ब वर्ड वो सब्जेक्ट के आगे नहीं लिखा हुआ, पीछे लिखा हुआ है। And the rule is of affirmative and negative sentence, it is subject plus verb plus object। अब क्योंकि एंड वैसे भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में सवाल नहीं पूछ सकते, किसी ने क्या कहा हम उसको सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में यूजिंग माय वर्ड्स। सो शी आस्क्ड मी, तो एक तो सेड का बन गया आस्क्ड, दूसरा क्वेश्चन मार्क हट गया, एंड तीसरा ये जो वर्ब है ये आपका WH वर्ड के पीछे आ गया। सो शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। नाउ ये क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट है, तो ये एंड हुआ नॉट ऑन क्वेश्चन मार्क बट ऑन फुल स्टॉप। द डॉक्टर सेड हाउ इज द पेशेंट, the doctor now asked, the doctor said comma inverted comma open, how is the patient question mark and inverted comma close। ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में said का बन जाएगा asked how the patient was, how was the patient नहीं, how the patient was। ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के पीछे आ गया, एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है लास्ट पार्ट। Changing the interrogative sentences. If the question can be answered in yes or no, and if it begins with a helping verb, proceed as under. She said to me, "Are you unwell today?" Direct speech. She asked me if I was unwell that day. Indirect speech. They said, "Is the teacher in her class?" Direct speech. They asked if the teacher was in her class. Indirect speech. नाउ एक होता है आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इज आर एम वाज वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस हैं इनका 99% केसेस में आंसर यस या नो ही होता है। सो अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन है एंड वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो क्या किया जाए, देन शी सेड टू मी, सेड के बदले आ जाएगा आस्क्ड। अब आस्क भी लिख सकते हो, आप इंक्वायर भी लिख सकते हो, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज अनवेल दैट डे। इंक्वायर यूज करना तो बन जाएगा शी इंक्वायर्ड मी नहीं, शी इंक्वायर्ड फ्रॉम मी इफ आई वाज अनवेल दैट डे। दो तरीके हैं, एक तो आप आस्क यूज कर लो, दूसरा इंक्वायर यूज कर लो। They said that is the teacher in her class, they asked if the teacher was in her class, and of course ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब वाला वर्ड है ये इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट के आगे लिखने के बदले सब्जेक्ट के पीछे लिख दिया जाता है, एंड अगर वर्ब सब्जेक्ट के पीछे आया हुआ है तो वो क्वेश्चन नहीं रहता, वो एक स्टेटमेंट बन जाता है। कोई सवाल? एनी डाउट? No, sir. No, sir. इसका वर्ड फाइल No, sir. मेरे पास पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट Yes, sir. एक्टिव पैसिव का आई थिंक वर्ड फाइल है। सो व्हाट विल डू इज वर्ड फाइल आपका जो ग्रुप बनाया ना उसमें लोड कर देंगे, देन यू कैन स्टडी दैट इजीली फ्रॉम देयर।
समझ में आ जाएगा। एंड देन उसके Okay. बाद में कुछ इसकी एक्सरसाइजेस भी डाल देंगे। ओके Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ये बहुत भारी हो गया है आज के लिए, मेरे लिए तो नहीं। सो इसके आगे और कुछ करने के बदले थोड़ा इसको रिफ्लेक्ट करो ना। एक चीज बताइए, जो हम बोलते रहते हैं इसका कुछ नोट्स बनाते हो कि सिर्फ सुनते रहते हो? सर नोट्स बनाता हूँ सर, मैंने नोटबुक बनाई है। नोट्स बनाए, ओके गुड, दैट्स ग्रेट। राइट, सो यस। इसको इधर ही क्लोज करते हैं। रिफ्लेक्ट, गो थ्रू योर नोट्स, रिफ्लेक्ट करें। एंड ये वीडियो तो मैं लोड कर दूंगा, इसको तो रिकॉर्ड किया गया है। सो व्हाइल